Follow us to stay updated on debates, discussions, facts, and tips about health. Click on the subscribe button and the bell icon for latest updates. The significance of diet in managing hypothyroidism is paramount and deserves careful attention. While medication remains the cornerstone of treatment, nutrition plays a crucial role in supporting thyroid function and alleviating symptoms. A well-balanced diet not only aids in regulating hormone levels, but also helps prevent complications associated with the condition. By incorporating key nutrients like iodine, selenium, and zinc, along with anti-inflammatory foods, individuals can actively support their thyroid health. Let's dive into an engaging discussion on how dietary choices can empower those with hypothyroidism to manage their symptoms and enhance overall well-being. Welcome everyone. I'm Dr. Soumya Saluja from Fit Media, and today we are diving into an essential topic that affects many, the role of diet in managing hypothyroidism. And to guide us through this discussion, we have with us the esteemed Dr. Medhavi Gautam, who will shed light on how nutrition plays a crucial role in supporting thyroid function and improving overall well-being. Dr. Medhavi Gautam is a distinguished senior consultant dietitian and nutritionist, currently serving as the director of Dr. Medhavi's NutriFit in Jaipur. With over 19 years of expertise in clinical nutrition, she has made significant contributions to the field. Dr. Medhavi holds the role of Joint Secretary at the Indian Dietetics Association Rajasthan chapter and is a respected life member of the Indian Society for the Study of Reproduction and Fertility. Previously, she served as the head of dietetics at a prominent 600-bed multi-speciality hospital, SDMH. Dr. Gautam's influence extends beyond clinical practice. She has been invited to speak at over 700 lectures, TV shows, FM, and AIR programs, advocating for nutrition awareness. Her dedication to education is evident through her authorship of the book Count Your Calories and numerous articles published in various journals and print media. Dr. Gautam is committed to community health, having conducted extensive camps, workshops, and nutrition awareness programs across diverse segments of society. Her impact on professional development is profound, having trained more than 300 dietitians. Her contributions have been recognized with prestigious awards, including the Sri Shakti Samman 2024 and the Jewel of Rajasthan Award 2022 for excellence in nutrition and dietetics. Dr. Medhavi Gautam, Fit Media welcomes you, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am, for your precious time today. Ma'am, we all recognize, that managing hypothyroidism, it often involves more than just medication. And, many may not even fully realize, the significant role of diet that it could play in supporting thyroid health. So to bridge this gap, in terms of understanding, I'd like to start this discussion with the most, fundamental question what role does diet play in managing hypothyroidism? I mean, how can dietary choices affect thyroid hormone levels? Look, Soumya, there are many factors, and one of the biggest factors in hypothyroidism is, I would not say just dietary changes. It is basically a lifestyle change. We Right. need a lifestyle change to manage hypothyroidism, and diet is an integral component and foremost component of a lifestyle management. So when it comes to hypothyroidism, we need to understand that all the things like your diet, your exercising pattern, your physical activity, or your sleeping patterns, stress patterns, so everything has to be in a regular common sync. Once it Okay. is outside the sync, so Right. then the things go bad. Man, Right. that's one example which I normally put to my patients or whosoever come to me for therapy. This problem is, I say कि एक building के 4 pillars होते हैं. जी. One pillar is diet,
सेकंड पिलर इज एक्सरसाइज, थर्ड पिलर इज स्लीप एंड फोर्थ पिलर इज स्ट्रेस. सो अगर एक राइट. बिल्डिंग 4 पिलर पे खड़ी होती है, कोई भी एक पिलर वीक होता है तो गिरती है ना बिल्डिंग. सेम जी. हमारा बॉडी का ये 4 पिलर्स हैं, एंड एनी वन पिलर इज वीक इन केस ऑफ थायराइडिज्म, तो बॉडी का कहीं ना कहीं इम्बैलेंस होना जाता ही जाता है. So जी. it's and diet being the most integral part, foremost part, and most neglected part of राइट. thyroid management. क्योंकि सबको राइट. लगता है थायराइड है, थायराइड का क्या है, कोई बात नहीं, गोली खा लो, अपने तो डॉक्टर ने बोली है, गोली खा लेंगे और अपना चलाते रहो जैसे काम चल रहा है. और क्या जी. होता है, कब गोली का डोज बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, तो हम भी रियलाइज नहीं करते कि जी. 25 mg 50 mg से कोई स्टार्ट करता है और कब वो 100 150 200 mg पे भी पहुंच जाता है. जी. इट हार्डली मैटर्स टू देम, क्योंकि गोली का केवल साइज बढ़ रहा है या नंबर बढ़ रहा है. क्या जहाँ वो जी. एक गोली खा रहे थे वहां वो 2 गोली खा रहे हैं. पर हम्म. बाकी अपनी जिंदगी अपने को आराम से जीनी है. आराम से जीनी है मतलब डाइट मनपसंद कन्वीनियंस अपने है. को. जी. Diet convenience, and they don't want to, nobody wants to change the diet because राइट. nobody takes thyroid as a disease. है ना, राइट. क्योंकि क्योंकि जब अपने यहाँ पे ना कल्चर क्या है, अपने यहाँ पे है कि बीमारी अगर होती है ना तो ही हम चेंजेस लाना चाहते हैं. नहीं तो हम ना थायराइड को बीमारी में लाते हैं, ओबेसिटी को कोई बीमारी में नहीं समझता है. मतलब अनलेस कि यू डोंट हिट टू अ हॉस्पिटल फॉर सम यस. मैनेजमेंट, तब तक हम बीमार नहीं है और हम तब तक कोई चेंज करेंगे नहीं अपने जीवन शैली में. दैट्स द जी. प्रैक्टिकल अप्रोच वी हैव. जी. जी मैम. और जैसे आपने बोला कि हमारा शरीर 4 इंपॉर्टेंट पिलर्स पे खड़ा है जिसमें बेचारा डायट हमेशा निग्लेक्ट हो जाता है. तो अब एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दैट आई एम गोइंग टू स्टार्ट इज दैट व्हाट आर द रिकमेंडेड फूड्स एंड न्यूट्रिएंट्स और supplements also that you think can support a thyroid health? Look, as far as thyroid is concerned, I would not say one particular thing that you have to have in general कि आप यही खाओ तो आपका thyroid ठीक हो जाएगा. We जी. have to have a nutritious, well-balanced diet. So it has Okay. to be a well-balanced diet. Now, what is the importance of balanced diet? बचपन से मतलब मेरे ख्याल से क्लास 3 4 में समझा देते हैं कि बैलेंस डाइट होता क्या है. बट जी. हम इतने बड़े होने के बाद में एक्चुअली अगर मैं किसी का भी एक रिकॉल लूं, आपका या मेरा, मतलब किसी रैंडम का किसी का भी रिकॉल लूंगी ना, कोई भी बंदा आज की तारीख में बैलेंस डाइट नहीं खा रहा जी. है ना. नहीं खा रहा. बैलेंस डाइट का बेसिकली कंसेप्ट होता है दैट यू हैव टू हैव ऑल काइंड ऑफ मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इन वन डेज ईटिंग पैटर्न. आई डोंट से जी. वन डे थाली. आप एक जी. थाली की बात नहीं कर रहे, हम एक पूरे दिन के ईटिंग पैटर्न की बात कर रहे हैं. तो आपके जी. सारे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, योर कार्बोहाइड्रेट्स, योर प्रोटीन्स, योर फैट्स have to be there, and जी. also your micronutrients, your vitamins, your minerals, your important antioxidants, everything has to be there in the diet. तो जी. unless हम लोग ये सब कुछ एक दिन के डाइट में, और साथ साथ में ना, there are like majorly 6 components when we जी. talk about a balanced diet, कि आपका कार्ब्स आ जाता है, उसमें प्रोटीन्स आ जाता है, फैट्स आ जाता है, विटामिन्स आ जाते हैं, मिनरल्स आ जाता है और वाटर आ जाता है. ये 6 जी. चीजें हैं जिनको हमें बैलेंस करना है हमारे डाइट में. जी. हम लोग ना इंडिया में कार्ब्स बहुत अच्छे से बैलेंस करते हैं. क्यों? क्योंकि जी. हमारे वी आर बेसिकली एग्रीकल्चरल लैंड ना. हम जी. लोगों के यहाँ पे 70% रेवेन्यू हो रहा है एग्रीकल्चर से, और हम लोगों का खाना मतलब रोटी खाना होता है हाँ ना. जी. आप, हाँ मैं जी. किसी से पूछती भी हूँ ना रिकॉल कि भाई आप बताओ आपने कल क्या खाया, आप खाना कैसा, मैडम खाना तो ये बहुत अच्छा खाते हैं. क्या खाते हैं खाने में? सब 4 रोटी सुबह खा लेते हैं, 4 रोटी शाम को खा लेते हैं. जी. दाल क्या कितनी खाते हैं वो पता नहीं है. दाल इज समथिंग वेरी, ये बाय चॉइस वाला चीज होता है. अपने यहाँ पे क्या होता हाँ है जी. कंसेप्ट, या तो सब्जी बनती है या दाल बनती है. दैट्स हाँ हाउ जी. इट इज. दाल इज नॉट ऑन अ रेगुलर बेसिस. और वेजिटेबल्स भी जो होती है वो थोड़ी 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 खा लिए. मेजरली जी. जो होता है वो रोटी से पेट भरते हैं. और जब जी. तक रोटी पेट में नहीं जाती है तब तक में वो सटाइटी भी नहीं आती लोगों के मन के अंदर कि हमने कुछ खाया. कि हाँ आप जी. रोटी कम कर दो और कोई चीज ऐड ऑन कर दो ना तो भी लगेगा नहीं, वी हैव नॉट हैड फुल बिकॉज हमने रोटी कम खाई. सो जी. कार्ब्स तो क्या है, हमारे यहाँ पे कार्ब्स आर ऑलवेज वेल बैलेंस्ड. वो तो हाँ जी. ओवर हाँ जी. बैलेंस्ड होते हैं, बल्कि नॉट वेल बैलेंस्ड, दे आर ओवर डन समटाइम्स. बट जी. जी. द अदर न्यूट्रिएंट, एंड देन सेकंड न्यूट्रिएंट व्हिच इज ओवर डन इज योर फैट्स, जिसको हाँ भी जी. लोग जुडिशियसली यूज करने के नाम पे, आई डोंट से नाउ डेज देयर पीपल हैव दो बिकम लिटिल मोर लिटरेट अबाउट ईटिंग हेल्दी. तो जी. वो लोग को समझ में आ गया है कि हाँ फ्राइड नहीं खाना है, जंक नहीं खाना है. पर जी. घर में भी जब फैट्स कंज्यूम कर रहे हैं ना, तो कौन सा फैट कंज्यूम करना है, दैट दैट कंसेप्ट इज स्टिल नॉट ग्रोन अप टिल नाउ. आई ये ना एग्री. हम यस. घर में भी खा रहे हैं
तो हम हम्म, भर के तेल डाल रहे हैं खाने में या भर के घी डाल रहे हैं। कई कई जगह होती है, दीज आर रीजनल बेस्ड फूड्स। कई जगह हैं जहाँ केवल खाना घी में ही बनता है, कई जी जगह है जहाँ खाना केवल सरसों के तेल में बनता है, कई जगह है जहाँ खाना मतलब मॉडरेटली यूज करते हैं, कई ज्यादा ओवर यूज करते हैं। So जी there is no concept of how much of fats to be taken and what amount to be taken. थर्ड जी थिंग, जो हमारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में आता है वो प्रोटीन्स आता है। अब कुछ जगह अभी ये क्या हो गया, नाउडेज द जिम कल्चर हैज दो कम इन, और ऐसे यस में लोग प्रोटीन 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 करके इतना हल्ला मचा रखे कि एक एक जॉनर ऑफ पीपल है वो तो दे टेक एक्सेस अमाउंट ऑफ प्रोटीन विच इज नॉट यस रिक्वायर्ड, है ना। विच इज और कुछ वेरी लोग हैं, अनहेल्दी। एब्सोल्युटली इट इज बैड। यस एंड यस अपने यहाँ पे अगर ऑन एन एवरेज देखें इंडियन डाइट में, तो वी आर ऑल डेफिशिएंट इन प्रोटीन, इन ईटिंग ओके पैटर्न। या राइट बिकॉज इंडियन, वेजिटेरियन इंडियन स्पेशली, और हम लोग हाँ यहाँ जी 70 to 80% ऑफ पॉपुलेशन इज वेजिटेरियन, 20% ओके पॉपुलेशन इज नॉन वेजिटेरियन। तो आप देखो, राइट आप 70 से 80% लोग जो है, वी इंडियंस एज वेजिटेरियन इंडियंस आर वेरी लो ऑन प्रोटीन्स एज फार एज ओके प्रोटीन्स आर कंसर्न। तो हम लोग जी प्रोटीन डेफिशिएंट है एक्चुअली, और हम जी लोग सफिशिएंट प्रोटीन खाते ही नहीं है। तो कहाँ थे, कहानी कहाँ घूम के आती है, फिर से वही आती है कि वी आर जस्ट फोकसिंग ऑन जी 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 वर्क करना है। तो जब कार्बोहाइड्रेट्स की मैं बात करूँ स्पेसिफिकली थायराइड में, तो हमें ये ध्यान रखना है कि वी हैव टू हैव होल ग्रेन्स एंड होल कार्ब्स। rather जी than taking simple carbs, we have to take complex carbohydrates. तो complex जी carbohydrates में आपके सभी मोटे अनाज आ गए या आपके साबुत अनाज आ गए। मोटे अनाज में अपना सारा मिलेट्स आ जाता है। Nowadays जी millets are in fashion. हम्म Right from the day our prime minister, dear prime minister, has जी announced about millets, millets have become trending now. And जी that comes in अपना मोटा अनाज, और साबुत अनाज में आपका सारे होल ग्रेन्स आते हैं। तो जहां तक जी हो सके ना, रोटी जो यूज में ले, दैट शुड बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ कपल ऑफ आटाज। ओके अब ऐसा बोलते हैं कि हम बोलते हैं कि आप मिस्सी रोटी लो, या बेजड़ का आटा बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में जी यहाँ पे। तो बेजड़ का आटा मीन्स दैट यू हैव टू हैव 2:1:2 का रेशियो, जिधर आपका 4 पार्ट सीरियल का होगा, 1 पार्ट आपका दाल का होगा। तो दैट जी कॉम्बिनेशन ऑफ रोटी यू टेक आइदर, और इन केस यू आर टेकिंग ओनली सीरियल का रोटी, तो जैसे गेहूं का अगर खाने का ही आदत है, तो आप गेहूं में उसको विद चोकर खाओ, या आप उसमें थोड़ा जौ या जवार मिलाने की कोशिश करो। सो व्हेन यू इंक्लूड ऑल दीज थिंग्स, सो दैट्स बेसिकली इंक्रीजिंग द फाइबर ऑफ योर रोटी. A राइट fiber is an again integral part of any diet management as far as the thyroids are concerned, because हमें फाइबर जो काम करता है ना, वो बल्क देने का काम करता है बॉडी के अंदर। जी और जी बल्क जितना मिलेगा उतना बेटर हमारा सैटिस्फाइटी होगा, है ना। जी आप सिंपल गेहूं की रोटी अपन खाते हैं चने हुए आटे की, वो अगर कोई 4 रोटी खाता है, तो वो मल्टीग्रेन या बेजड़ का आटे की मिस्सी रोटी खाते हैं, तो वो 2 रोटी तक में भी सेटिस्फाइड फील कर सकता सेटिस्फाइड है, जस्ट बिकॉज द कंटेंट ऑफ फाइबर हैज इंक्रीज इन दिस वन। So that राइट 2 rotis will give you that much of satisfaction as much as those 4 rotis might not give you. और राइट सिंपल कार्ब्स तो बिल्कुल हो सके तो अवॉइड ही करने हैं। तो सिंपल कार्ब्स में आपके सारे व्हाइट्स आ जाते हैं, स्पेसिफिकली व्हाइट ब्रेड्स हो गए, या राइस आपका सिंपल कार्ब में आ गया, शुगर्स आपके सिंपल कार्ब में आ गए, व्हाइट शुगर स्पेसिफिकली। तो ऑल दीज व्हाइट्स हियर, ओके so these whites you need to avoid in as far as the thyroid is diet is concerned. तो आपको मैदा नहीं लेना है, मैदा या आपका मैदा बेस्ड जितना भी हो गया, आपका पास्ताज हो गया या आपका नूडल्स हो गया, ऑब्वियसली ऑल दीज थिंग्स नाउडेज, दो इनके भी बड़े एक अच्छे हेल्दी वर्जन आने लग गए कि भाई व्हीट पास्ता आ गया, व्हीट नूडल्स आ गए, या हाँ जी आपका अच्छा राइस का जो कंसेप्ट है, उसमें पीपल हैव दिस स्ट्रॉन्ग this thing in their head कि white rice is bad, तो चलो we'll have brown rice and it will be good. So in जी that case again I need to highlight that white and brown have not got too much of nutrient point of view, they don't have too much of differences, है ना। ओके white हाँ and brown में almost same है। white जो है वो थोड़ा polished होता है, brown जो है वो थोड़ा unrefined होता है, polished नहीं होता। तो nutrient ओके composition almost same है। हम्म ब्राउन वाले में हल्का फुल्का थोड़ा फाइबर का मात्रा ज्यादा मिलेगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप राइस बोलेंगे तो व्हाइट खा लोगे तो कुछ गड़बड़ हो जाएगा। व्हाइट हम्म राइस अगर आप खाते हो तो उसको खूब सारा सब्जी से पुलाव उलाव बनाते हैं ना अपन, तो एड लॉट हाँ ऑफ जी वेजिटेबल्स एंड देन ईट व्हाइट राइस, so it will give you as good values as much as the brown rice would, because brown ओके rice is not pocket friendly। देखो अपन लोग सौम्य जब भी खाने की बात करें ना, जी diet should always be pocket friendly, diet should always जी be local, and it should always be sustainable.
अभी हर राइट। वक्त में वो चीज नहीं मिलता, आपको व्हाइट राइस ज्यादा आराम से मिलेगा बजाय ब्राउन राइस के मार्केट के अंदर। जी तो जी। आप ढूंढने भी जाओगे, एंड ब्राउन राइस का टेस्ट एकदम से लोगों को समझ में भी नहीं आता। तो हाँ जी, आपको नहीं व्हेन आता। यू हैव अ टेस्ट फॉर सम फूड, बिकॉज आप बचपन से वही खा के बड़े हुए हो, तो इफ यू जी हैव टेस्ट फॉर सम फूड गुड, इट्स गुड इनफ, बस यू नीड टू चेंज द फॉर्म हाउ यू आर ईटिंग इट, है ना? जी So जी। try and cut down on the simpler carbs, take more of complex carbohydrates. And जी millets का ऐसा है कि अपने यहाँ पे जो millets रहते हैं specifically, those are two of them, that's jawar and bajra. They are जी अपना local millets, मतलब I जी। am again मैं हर बार highlight करती हूँ, try to be more local and more vocal about local, जी because you have to eat those things which are produced in the same area where you have been grown. तो जहाँ वो ओके। चीजें ग्रो हुई है, आप वहां ग्रो हुए हो, तो आप उसके साथ में आपका गट ज्यादा फ्रेंडली रहेगा, ठीक है? अच्छा। एंड यू हैव जी टू अंडरस्टैंड दैट गट हैज टू बी वेरी फ्रेंडली विद द फूड व्हाट यू टेक, अदरवाइज द होल सिस्टम ऑफ द बॉडी गोज रॉन्ग। तो जी। try and take those things which are locally grown. So in our place, it's bajra and jawar, which is more local. And जी bajra सर्दियों में मिलता है, जवार आपको गर्मियों में मिलता है, तो both the ways all the year round 24/7 you have millets available, ठीक है? जी। मिलेट्स में आपका यह है कि फाइबर कंटेंट बहुत अच्छा होता है, आयरन कैल्शियम प्रोटीन सब बढ़िया मिलता है, लेकिन जी। मिलेट्स में साथ साथ में इनहिबिटर्स भी मिलते हैं। तो अपने को ओके। मिलेट्स यूज उतना ही करना है, लाइक यू इन केस इफ यू हैव 7 days वी आर ईटिंग रोटी, तो आउट ऑफ ऑल 7 days 3 days एनी वन मील, तो आपका ओके। एक 3 मील्स जो है हफ्ते की, उसमें आप मिलेट्स यूज करोगे। इट्स नॉट ओके। लाइक दिस कि मिलेट्स इज हेल्दी तो हम रोज ही मिलेट का, हम लोग साहब रोटी हमने तो जवार की चालू कर दी, या हम तो खाली बाजरा ही खाते हैं, या हाँ जी। रागी, दैट्स अगेन वेरी कॉमन मिलेट विच इज बीइंग यूज्ड दो इन आवर स्टेट आल्सो। अपने यहाँ पे रागी का इतना प्रोड्यूस है नहीं, रागी इज मोर प्रोड्यूस्ड इन एमपी साइड में, बट स्टिल चलिए, पड़ोसी से मिल लेके आ जाते हैं हम लोग, अच्छा सिनर्जी रखा हुआ है हमने। तो रागी इज अगेन अवेलेबल। आई हैव सीन पीपल ईटिंग जस्ट रागी का रोटी। आई मीन आई ओके। यू आर टेकिंग रागी का रोटी, गुड इनफ, आप बाजरे की रोटी ले रहे हो, गुड इनफ, बस ये देखो कि आप वीक में 3 बार से ज्यादा नहीं कर रहे हो उसको। जी So that's जी। again one more thing. So millets you have to incorporate whole grains rather than simple grains. And हम्म। sugars, जैसे मैंने आपको बोला, is one of the carbohydrates which is absolutely no. नो। एंड वो राइट। एक चीज है जो मैं नो नो की लिस्ट में डालूंगी पूरा पूरा, बिकॉज आपका शुगर्स में भी व्हाइट शुगर की बात कर रही हूँ, तो आप उसको भी रिप्लेस करोगे गुड़ से या शहद से। सो दोज आर ओके। दी बेटर फॉर्म ऑफ शुगर्स टू बी कंज्यूम्ड इन योर डाइट। आजकल वो ओके। गुड़िया शक्कर भी आ रही है, और आपका गुड़ को प्रेस शुगर भी बन के आ रहा है। आई मीन जी पाउडर्ड जैगरी मिल रहा है आजकल। तो यू हैव ऑल फॉर्म्स ऑफ सच काइंड ऑफ शुगर्स विच यू कैन ऐड टू योर डाइट। अगेन वाई? बिकॉज व्हाइट शुगर इज जस्ट सिंपल कार्ब, नथिंग मोर। हम्म। हनी लेते हो या जैगरी लेते हो, तो उसमें आपको एडेड एडवांटेज, कैलोरीज पॉइंट ऑफ व्यू से सब में सेम कैलोरीज मिलता है, चाहे ओके। वो व्हाइट राइट। व्हाइट शुगर हो, हनी हो, जैगरी हो। पर जी इसमें आपको एडेड एडवांटेजेस मिल रहा है कि दे आर नॉट रिफाइंड, सो यू गेट द एडिशनल एडवांटेज ऑफ दोज मिनरल्स which they carry with them, like jaggery has an immense amount of iron in आए। it. Then again आपका हनी है, इट्स अगेन अनरिफाइंड, सो यू गेट कपल ऑफ मिनरल्स जो आपके नेक्टर में अलग अलग, क्योंकि वो अलग अलग क्या बोलते हैं, फ्लावर्स से जब हनी कलेक्ट होता है नेक्टर में, जी। तो इट हैज बेनिफिट्स ऑफ सो मेनी अदर डिफरेंट प्लांट्स, सो दैट्स हाउ इट ओके। इज। तो ओके। इसीलिए दीज आर बेटर फॉर्म ऑफ शुगर्स टू बी कंज्यूम। कुछ ओके। लोग मुझे ऐसे कहते हैं कि मैम मिश्री खा ले, मिश्री तो चीनी से बेटर होती है ना, बट हम्म। मिश्री, चीनी, बूरा, दीज आर ऑल सेम थिंग, दे आर जस्ट ओके। वन ऑफ द सेम थिंग। सो इट्स नॉट लाइक दिस कि मिश्री खा लियो तो आप कुछ बेटर शुगर कंज्यूम कर रहे हो, बेटर के नाम पे लेते हो, तो ये हो गए। और आपने नहीं लेना है तो आई वुड रादर से कि आप अपना शुगर स्वीटनर्स जो हो गए, डेट्स है या अंजीर है, ऐसा जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं ना, इनका शुगर काम में लो, आपको अगर काम में लेना है तो। बिकॉज जी थायराइड में स्पेसिफिकली देयर आर कपल ऑफ टाइम्स दैट यू हैव दिस कॉम्बिनेशन ऑफ डायबिटीज एंड थायराइड ऑल्सो। दैट्स अ वेरी राइट। commonest of common combination, and there you have to take care of these things also. So that's how जी it is. So this is about carbs. Now I come to the proteins. Like I said, proteins आपका बहुत poor है हमारे यहाँ पे. Picture of proteins is very poor in a general segment. I'm not जी। talking about one specific segment जो लोग excessive gymming कर रहे हैं और उनको लगता है हम बहुत सारा प्रोटीन खा रहे हैं, वो लोग भी ना इस मिसकंसेप्ट में ही है, क्योंकि वहां पे भी ना वो लोग केवल एक्स्ट्रा प्रोटीन ही खा रहे हैं, लेकिन डाइट में उनका मिसिंग है। ओके। हमारे यहाँ पे डाइट में क्या होता है, डाइट में भी मैंने जैसे आपको कहा, दाल इज जस्ट एन ऑप्शन,
इट इज नॉट Yes. अ कंपल्शन, इट इज एन ऑप्शन। क्या है, दाल बनी है या ये सब्जी नहीं है, ये सब्जी नहीं, चलो दाल बना लेते हैं। दाल बना So we are not compulsorily, we are not taking dal. Compulsorily, we are not taking sprouts daily. Or compulsory, we don't take. Some people take dahi, some may not take dahi. दूध Right. कुछ कहते हैं कि सब बहुत खराब है, दूध तो पीना ही नहीं चाहिए करके एक वो एक अलग कहानी फ्लोट करती रहती है साथ में कि मिल्क इज बैड जी, एंड वी डोंट हैव टू हैव इट. So again, milk consumption is not that much in our diet. So when you see a whole day's diet, there's not enough proteins. Where are we getting proteins from then? right. सारे तो सोर्सेज हमने ऑप्शनल रखे हुए हैं कम. जी, तो ऐसे में क्या होता है कि हम डाइट में तो इतना ले रहे नहीं है और हम जिम जाके वो महंगे वाले डब्बे खरीदते हैं एंड देन वी टेक 2 scoops 3 scoops. Yes, I'm taking 50 grams of protein. Now you understand this way कि आप 50 ग्राम प्रोटीन कंज्यूम कर रहे हो, पर आपका सपोज एक बंदे का नॉर्मल रिक्वायरमेंट जो होता है दैट इज 1 ग्राम पर केजी आइडियल बॉडी वेट. सो वट एवर okay. इज द आइडियल बॉडी वेट, से सपोज माई आइडियल बॉडी वेट इज से 60 kgs. So I Okay. have to take at least 60 grams of protein in one day. अब वो Right. मेरा नॉर्मल डाइट से आना चाहिए 60 ग्राम, है ना. जी, और मैं जी, अगर उस पे एक्सरसाइज कर रही हूँ, इनफ ऑफ एक्सरसाइजिंग या जिमिंग कर रही हूँ, तो मेरे 60 प्लस में जाना चाहिए वो प्रोटीन जो मैं ले रही जी, हूँ. पर यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ तो है 0 और वो हम्म, 60 ग्राम्स में ले रही हूँ डब्बे से. तो बेसिकली जी, मैं डब्बे वाला तो अपने नॉर्मल डाइट को ही कॉम्पनसेट करने में खत्म कर रही हूँ. जी, So where am I getting extra proteins then? So that's again a waste of money, rather I should say. right, And right, what we have to understand is you have to have enough of proteins in diet. So it should be right. say one exchange of protein in each meal you consume. तो आप ब्रेकफास्ट से लेके लंच डिनर तक भी जितने भी मील्स आप और इंटरमिटेंट मील्स भी ले रहे हो, तो दही दूध ले लो, एक मील में आप दही ले लो, एक में आप दाल ले लो. फिर इंटरमिटेंटली आपने स्प्राउट्स ले लिया या चना ले लिया या मूंगड़ा ले लिया, है ना. सो वी जी, हैव इनफ ऑफ सच ऑप्शंस व्हिच वी कैन यूज होल डे लॉन्ग to right. take up proteins. As जी, long as dals are concerned in thyroid patients, definitely soybean is one of the highest source of protein which vegetarians can get from, but it right. is to be avoided in thyroid patients because the soya and soya products are supposed to be little thyrogenic and they might not be as good for those patients. तो दैट Okay. इज वाई आपको सोया प्रोडक्ट्स अवॉइड करना है. सो दैट इज आपका टोफू हो गया या न्यूट्री नगेट्स हो गए या सोया ग्रैन्यूल्स हो गए या सोया दाल हो गई या दाल वड़ियां हो गई सोयाबीन की. तो इन एनी वेज दाल वड़ी मंगोड़ी नगेट्स टोफू किसी भी फॉर्म में या सोया मिल्क अगर कोई लेता है तो दैट शुड बी अवॉइडेड इन जी, इन योर दाल्स. रेस्ट ऑल हम्म, दी दाल्स आर एब्सोल्युटली गुड. अच्छे से खूब दाल खाइए, रोज का 1 कटोरी दाल खाना ही खाना है, रोज 1 कटोरी स्प्राउट्स खाना ही खाना है. दैट शुड बी द कंसेप्ट कि इतना दाल तो एक दिन में जाना ही चाहिए. दैट्स अराउंड से 40 to 50 grams of dal in one day. तो इतना right. कम से कम जाए. So that will be a good protein you are taking. And then in हम्म, case if you are an vegetarian, so maybe you can have your egg whites, but the yellow is again to be avoided. What is important for thyroid patient is to a very important point is to maintain their weight. Weight right. management is integral part of thyroid management. ये जी, नहीं है कि सब मोटे हैं तो थायराइड होगा ही होगा, पर ये हम्म, जरूर है कि थायराइड है अगर तो मोटा नहीं होना है. That's how जी, it is. So it's not like this that every obese is a thyroid patient. No, obesity has 100 reasons. There are many हम्म, reasons for obesity. But yes, in case you are a thyroid patient, you need to be very particular that you're not getting obese or you're not going high on your weight. So right. again, eggs अगर use कर रहे हैं तो it has to be the white part of the eggs and not the yolk. In case if you're a non-vegetarian, then you're not supposed to take the red meats. You're just taking the chickens and fishes. And again, that only in a small amount wherever you're consuming it, then you're replacing it to your dal or your dahi wherever you're taking. So Okay. either of one source of protein you have to consume. That's how it is. The concept is. So हर meal में एक exchange protein का रखे और this is how the distribution of protein should be. Then we Right. come to the fats. तो अपना fats जो होता है that should be again uh, फैट्स आर नॉट बैड ऑलवेज लाइक आई सेड. तो हमें ये चेक करना है कि हम किस तरीके का फैट यूज कर रहे हैं, हाउ मच इज द अमाउंट. द जी, रेशियो फॉर फैट्स इज अगेन 2:1 का रेशियो रहता है. दैट इज 2 parts ऑफ योर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड एंड 1 part ऑफ योर सैचुरेटेड फैट्स. तो वन जी, सैचुरेटेड फैट्स में अपने आ जाता है घी बटर, है ना, ऑल फैट्स विच आर जी, सॉलिड एट रूम टेम्परेचर. तो वो जी, आपके सैचुरेटेड में आ जाते हैं. और अनसैचुरेटेड में आपके जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड रहते हैं, तो आपके सारे जी, ऑयल्स आ गए.
और आपके इवन आपके जो ड्राई नट्स होते हैं, ड्राई फ्रूट्स हो गए या आपकी सीड्स हो गए, ये सब जी अनसैचुरेटेड फैट्स में आते हैं। तो 2 पार्ट जी इसका, 1 पार्ट उसका है। अगर ये रेशियो लेके हम चलते हैं, इफ यू आर डूइंग गुड विद इट, तो इट्स एब्सोल्युटली गुड, नाइस। तो वी हैव टू हैव हैंडफुल ऑफ नट्स इन 1 डे। तो उसमें ओके आपका स्पेसिफिकली आमंड्स हो गया, वॉलनट्स हो गया, एंड नट्स एंड सीड्स एक्चुअली। तो उसमें ओके आमंड्स हो गया, वॉलनट्स हो गया, सीड्स में आपकी जैसे सनफ्लावर सीड्स हो गए या पंपकिन सीड्स हो गए, फ्लैक्स जी सीड्स हो गए, है ना। जी These are these, and also chia seeds are in fashion these days कि भाई वो तो जी एक सो कॉल्ड सुपर फूड में आ जाता है कि चिया सीड्स तो खाना ही खाना है। सो अगेन फॉर जी पीपल हु कंज्यूम चिया सीड्स, आई हैव नो प्रॉब्लम विद चिया सीड्स, यू कैन हैव इट। बट बस उसका ध्यान ही रखना कि उसको ओवरनाइट सोक करके रखो, एंड इट शुड बी आइडियली कंज्यूम्ड इन दी मिड वाला जो आपका इंटरवल्स रहता है ना, बिटवीन द मील्स वाला। तो वो राइट आपका चाहे तो दो ब्रेकफास्ट और लंच के बीच वाला गैप हो गया, या लंच या डिनर के बीच वाला गैप हो गया, तो प्रेफरेबली बिटवीन द ब्रेकफास्ट एंड लंच वाला गैप, तो उधर में आप लेते हो तो वो उसका बेनिफिट आपको ज्यादा मिलेगा। तो आपका हैंडफुल ऑफ नट्स एंड सीड्स आपको लेना है रोज के डाइट में, सो दैट विल गिव यू दी मुफाज एंड पुफाज। एंड जी जहां एज फार एज सैचुरेटेड फैट्स आर कंसर्न, तो मैं ये नहीं कह रही कि घी बंद कर दो, but जी it's like this कि ghee should be only moderately used in your तड़कास। दाल का तड़का ले लिए या कहीं और, बिकॉज लाइक आई एम सेइंग कि दाल अब रोज खानी है, तो इनकेस जी आपको रोज खानी है तो आपका वो तड़के में घी रोज जाएगा ही जाएगा। तो रोटी जी पे आप नहीं भी घी लगाते हो या ग्रीसिंग एकदम मॉडरेटली करते हो उस पे, तो ही रहेगा, बट इट शुड नॉट बी एक्सेसिव कंजम्पशन ऑफ घी इन द जी डाइट। सो दैट्स हाउ। देन अगेन बटर्स में इट विल बी द व्हाइट बटर यू विल बी टेकिंग, दैट्स रियली नाइस, दैट्स अनक्लैरिफाइड बटर। तो वो आप ओके कंज्यूम करते हो तो वो इट्स अ गुड फैट टू बी टेकन। मेयोनीज, चीज आपका एब्सोल्युटली नो की लिस्ट में आएगा जब फैट्स का आ रहा है, तो स्पेशली मेयोनीज। आई मीन इट्स एन एब्सोल्यूट बैड फैट आई वुड से, है ना, ओके क्योंकि जब बैड फैट्स की कैटेगरी आती है ना, तो उसमें आपका मेयोनीज आ गया, या आपका ट्रांस फैट्स कहलाते हैं। जी ट्रांस फैट्स कौन से होते हैं? सब में जो फैट आपका रीयूज हो रहा है, बार जी बार यूज हो रहा है। और जी अपने यहाँ पे इंडियन थाली में अभी जैसे श्राद्ध चल रहे हैं, थोड़े दिन में जी नवरात्र आ जाएंगे, फिर दिवाली आ जाएगा, पूड़ी जी बन रही है, साग भटूरे बन रहे हैं, और हाँ ऐसे जी में ना आपका जब एक बार कढ़ाई चढ़ता है ना, तो वो तब हाँ तक जी नहीं उतरता जब तक उसका तेल गायब नहीं दिखाई देगा। हाँ जी नहीं दैट्स द रेगुलर कंसेप्ट ऑफ कुकिंग इन आवर फैमिलीज। और राइट जितनी बार वो तेल रीयूज हो रहा है ना, इट इज हाँ एक्चुअली जी वर्स फॉर द हेल्थ, है ना। राइट तो वो दैट्स ट्रांस फैट विच इज द वर्स्ट फैट। आई मीन आप एक तरफ भटूरे खा रहे हो क्योंकि चौथी बार तेल में तले हुए हैं, और एक जी तरफ आप पहली बार तेल में तली हुई पूड़ी खा रहे हो। तो आई थिंक हाँ दैट जी पहली बार तली हुई पूड़ी इज अ हेल्दियर वर्जन देन दैट फोर्थ टाइम भटूरा। भटूरा राइट So that's how it is, है ना। And the most favorite snack of all of us in our north side is samosas and kachoris, डोसा which are कचौड़ी the यस which is the best example of trans fat, because no halwai would think about your health and say कि नहीं मैं तो तेल रोज नया काम में लूंगा और राइट मैं उसी में नए तेल में तल के दूंगा मैं, ऐसा कभी नहीं होता है। वही वो होता है उसी तेल के अंदर उसको छान के नया तेल ऐड कर देते हैं, तो वो आपका जी 1 पोर्शन ट्रांस फैट का आपको मिलता ही रहता है। सो हाँ जी somebody who has a taste to have these all kachoris and all these things, samosas and all on a regular run, कि सब जी ऑफिस में क्या कर रहे हैं, मिड टाइम स्नैक में चलो समोसा खा लेते हैं, तो वो चीज को थायराइड वालों को तो डेफिनेटली रोकना पड़ेगा। अवॉइड दैट करना दे डोंट हैव टू हैव, या दे डोंट हैव टू हैव सच काइंड ऑफ स्नैकिंग। एब्सोल्युटली नो, नो फॉर सच स्नैकिंग, क्योंकि उसमें मैदा भी आ गया, इसमें आपके बढ़िया वाला तेल भी आ गया एकदम परफेक्ट, और इसके अंदर स्टफिंग्स में इट्स मोस्टली आलू, विच यस अगेन इज नॉट, आई मीन आई वोंट से आलू इज बैड, बट बाकी वेजिटेबल्स के मुकाबले आलू, अरबी, शकरकंदी, these vegetables have got less amount of fiber, and the glycemic content of these vegetables is little higher than the other. So that's why this would not be a very good choice of eating about fats. So अपना को good fats का portion रखना है 2:1 good, and 1 would be the bad. I don't say it's bad. Ghee is not bad, but yeah, the portion has to be controlled. So ओके this is about the macronutrients. So I ओके continue, or you have something else to ask? नो वी हैव लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस टू आस्क बट आई थिंक जैसे अभी आपने हमें मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में समझाया है आई वुड हैव कम डाउन टू समथिंग जो हमारे खाने में हम रूटीन में डालते हैं दैट सॉल्ट
and salt contains iodine, which actually I would say is very, very closely related with our thyroid health. So that was my next question. But how does iodine intake, impact hypothyroidism management? Look, what happens is we have to understand this one thing that our diet is not very good in iodine. The diet Okay, which we consume. okay. So diet we consume is not rich in iodine, and that Mm-hmm. is why the fortification of salt had happened at one point of time. Salt, Ji, why salt was fortified with iodine was because of immense amount of iodine deficiencies which was seen in one point of time, and that is okay, why. But because the iodine is again contraindicated when you are talking about a thyroid patient, so okay, that is where we say ki you have to use salt moderately. We okay, never say that you have to stop on salt, but okay. what is important to understand is that you have to stop on unnecessary salt. So Right, unnecessary salt means your unnecessary sodium intake, whichever way you are taking, that you right. have to cut down. That we can, which is unnecessary salt would be salt. जैसे मैं, I know families where people love to eat भुजिया with their food. I mean, Yes. मैं जानती हूँ families में जहाँ खाना बिना भुजिया के complete ही नहीं होता. तो Ji, खाना बिना पापड़ के complete नहीं होता है. So ji, I know people who eat papad on a regular basis, who eat bhujia on a regular basis, or ji, people. They take achar. मतलब they have to have achar as a side ji. eatery. कि अचार तो चाहिए थोड़ा सा कुछ चटपटा करने के लिए. So हाँ this जी. is the kind of things where we have to control actually. कि Okay. आप unnecessary भुजिया नहीं लेने वाले, अचार नहीं लेने वाले, आप पापड़ नहीं लेने वाले, ज्यादा चटनियां नहीं कंज्यूम करना. जी, सॉल्ट जो है वो केवल जो खाने में डल गया वो डल गया, बिकॉज सम अमाउंट ऑफ आयोडीन इज इम्पोर्टेंट, दैट वी कांट right, से कि वी हैव टू डू गो आयोडीन फ्री. एंड right. एक्स्ट्रा जो है वो नहीं जाना, तो वो आपको एक्स्ट्रा इन चीजों में नहीं लेके जाना है ना. ठीक सो है. योर अचार पापड़ या भुजियाज और योर चटनीज, दे आर नॉट अ वेरी गुड ऑप्शन. As the good option is that have your salt as much as there it is put in your diet, and हम्म. there should not be ऊपर से टेबल सॉल्ट डालने वाला आदत भी नहीं होगा. लाइक इन नहीं केस होना आई से चाहिए. यू हैव टू हैव योर सैलेड्स डेली, तो सलाद के ऊपर सॉल्ट का ड्रेसिंग नहीं होगा. सलाद के ठीक ऊपर है. ड्रेसिंग के नाम पे आप लेमन ड्रेसिंग कर लो, आप कर्ड ड्रेसिंग, कर्ड की ड्रेसिंग कर लो. यू कैन ऑलवेज डू अ विनेगर ड्रेसिंग. सो व्हेन दोज आर बेटर ऑप्शन देन Okay. अ सॉल्ट ड्रेसिंग. सॉल्ट जी. ड्रेसिंग एंड ऑल्सो ड्रेसिंग की बात ही आई है तो आई मिस दैट टाइम. ऑलिव ऑयल इज अगेन वन थिंग विच पीपल से इज वेरी हेल्दी करके बोल के खाते हैं. और हमारे यहाँ पे कुछ फैमिली ऐसे भी है जहाँ पे ऑलिव ऑयल में पूड़ियाँ तल तल के खा रहे हैं, है जी, ना. जी, एंड जी. उनको फॉर श्योर मुझे ये वाला बात बोलना पड़ेगा कि आप एक तरफ इतना महंगा ऑयल खरीद के ला रहे हो हाँ और उसको जी. तल के आप जीरो न्यूट्रिशनल वैल्यूज की जीरो कर रहे हो, है ना. बिकॉज Okay. ऑलिव ऑयल इज नॉट meant to be used on a higher temperature. ऑलिव Yes, ऑयल not chicken should not be मैंने कहा used. सौम्या हमें खाना खाना है हमारे देश के हिसाब से हाँ जी. जहाँ हम बने हैं. ऑलिव ऑयल अंग्रेजों का तेल है ना. इट्स नॉट आर दैट्स नॉट इंडियन ऑयल. इट वाज Okay. सम टाइम imported and now it is produced. That's a different thing. बट Yes. ऑलिव ऑयल का जो स्ट्रक्चर है वो हाई टेम्परेचर पे जाके डीनेचर हो जाता है. तो उसके ठीक है. जितने भी गुड क्वालिटीज है ना, दैट्स ऑल डीनेचर्ड ऑन अ हाई टेम्परेचर. और हमारे Okay. यहाँ पे खाना बनता ही हाई टेम्परेचर पे हाई है. टेम्परेचर पे मतलब है. हम सब्जी का छोंक भी लगाते हैं ना, तो जब तक तेल गर्म नहीं होगा छोंक नहीं लग सकता. और हाँ जहां जी. तेल गर्म हो गया छोंक लगने जैसा, ऑलिव ऑयल वहां डीनेचर हो चुका है. जी. तो कोई मतलब नहीं, आप हेल्दी ऑयल समझ के उसको ला रहे हो और ऑलिव ऑयल में खाना बना के दे रहे हो, तो वो इट इज एज गुड एज कंज्यूमिंग कैलोरीज एंड नथिंग मोर. तो इट जी. इज बेटर कि यू यूज अपना घर देसी तेल जो भी आपका सरसों का है या पीनट ऑयल है या जो भी आपको काम में लेना है, एंड कीप चेंजिंग दैट विद इन 3 months ऑफ टाइम. तो इस तरीके Okay. से इट विल बी अ बेटर वे. सो जी. सो नाउ आई कम बैक टू योर सॉल्ट. तो ड्रेसिंग्स में सॉल्ट को यूज नहीं लेना है एक्स्ट्रा टॉप पे. ऊपर से टेबल सॉल्ट यूज में नहीं लेना है. जी. Salt has to be used moderately, only for Okay. one reason. Iodine content will obviously be that will cut down. And number two, unnecessary salt will also not help you in water retention, which is again a very big problem here. कि weight बढ़ गया, सा weight बढ़ गया बोल के करते हैं. But mostly it is not. Sometimes it is not weight gain; it is water retention in the body, which is again contributing to weight gain. So again, Right. that way also salt has to be restricted.
ओके। एंड आपने जैसे अभी बताया कि आटा रिस्ट्रिक्शन बहुत जरूरी है फॉर एनी थायराइड पेशेंट, सो वन कंपोनेंट देयर दैट कम्स टू माय माइंड इज ग्लूटेन। सो मैम, ग्लूटेन का क्या इफेक्ट है थायराइड हेल्थ पे, पर्टिकुलरली फॉर हाइपोथायराइड पेशेंट्स? No, no, no. Dr. Soumya, I don't know why gluten has again become a villain in everybody's life ओके, somehow. I ठीक don't है। know why we are totally absconding gluten from our diet. राइट। Gluten should not be absolutely absconded because that is also one of the integral components of cereals, if you say, in a row. जी So आपका wheat जो है that is definitely mostly dominantly more in gluten. एंड जी। इसीलिए हम लोग कह देते हैं कि गेहूं बंद कर दो। हाँ गेहूं जी। बंद मत करो, बिकॉज हाँ आप जी। कुछ भी चीज बंद करते हो देन इवेंचुअली आप बॉडी को उस चीज से एकदम हटा दो। हटा रहे हो, मतलब यू आर एग्जम्पटिंग दैट फ्रॉम द डाइट एंड सम पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन यू आर अगेन टेकिंग इट, तो ऑल द मोर आपको डिफिकल्ट हो जाएगा उस चीज को बॉडी को रिटेन करने के लिए। Irritated. और सही। स्पेशली थायराइड के पेशेंट्स को इसीलिए क्योंकि आप बंद करते हो तो आपका क्या होगा, एकदम ग्लूटेन बंद करते से देयर वुड बी एन इमेंस अमाउंट ऑफ वेट का ड्रॉप ऑल्सो। और राइट। क्योंकि उसकी वजह से वेट ड्रॉप करेगा, यू विल फील वेरी गुड एंड समडे यू विल से कि नहीं यार अब मैं शुरू करती हूँ खाना क्योंकि मुझे अब वेट ठीक हो गया, मेंटेन हो गया, आई एम गुड विद इट। एंड द डे यू स्टार्टेड तो वेट एकदम बाउंस करेगा बहुत जोर से आपका, बिकॉज द बॉडी विल हैव दैट इम्बैलेंस देन। So you राइट। have to understand that we don't have to stop anything absolutely. It has to be taken into moderations यस। and maybe a little restricted amount, but it should be there. I mean, I will never say that you have to have a gluten-free diet to control your thyroid. Absolutely not. I would rather say it will be a semi-gluten diet, maybe, क्योंकि हम उसको combination रख रहे हैं आटे का. When I जी said a multigrain आटा, so multigrain is again उसमें गेहूं भी आ रहा है, उसमें जौ भी जी। आ रहा है, या अगर जौ आ रहा है तो that's again as good as गेहूं only. तो वो जी ग्लूटेन उसमें भी मिल रहा है हमारे को। जी। ग्लूटेन फ्री सिर्फ मैं उस कंडीशन में बोलूंगी व्हेन समबडी हैज एन एलर्जी टू ग्लूटेन, तब राइट। बोलूंगी कि हाँ आप ग्लूटेन फ्री रखो, तब तो आप बिल्कुल भी ग्लूटेन, अनलेस दैट इज नॉट द सिचुएशन, देन बिकॉज देयर आर पेशेंट्स थायराइड के हु हैव ग्लूटेन एलर्जीज आल्सो इन ओके। but otherwise it will be less low in gluten, but still you have to be, that should be an ongoing thing. Like अगर दिन में 3 बार अपन खाना खाते हैं ना, तो हाँ दो जी। टाइम it should be a मिक्स आटे की रोटी and one time it will be a गेहूं की। ओके। ओके। जो जाना है वो एक बार गया, बाकी 2 टाइम पे it will be a मिक्स वाला आटा। ओके। राइट। और अब मैं थोड़ा सा घर की औरतों के बारे में थोड़ा सा पूछूंगी आपसे, क्योंकि आपने बोला कि ज्यादातर हमारे देश में यही हाल है कि वी डोंट नो कि हमारा कितना परसेंट हमें लेना है, नहीं लेना है। तो डाइटरी मैनेजमेंट ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म किस तरह से दिखेंगे हम एक ग्रोइंग टीनेज गर्ल में, एक एक्सपेक्टेंट मदर में, और एक मेनोपॉजल वुमन में? ये तीन अलग अलग वॉक्स ऑफ लाइफ हैं। हाँ, देखिए, when you talk about teenage girls, so यस now मैम। I come to that point where I was where I stopped before. मैक्रो की हमने बात कर ली थी, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की मैं बात नहीं करी थी। एंड जी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में स्पेसिफिकली व्हेन इट कम्स टू टीनेज और एन एक्सपेक्टिंग मदर और अ मदर एंड देन हाँ जी। अ ग्रैंड मदर, सो ये जी हमारा सारा स्टेजेस आ गए। और हाँ जी। इसमें आपके दो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, दैट्स योर आयरन एंड योर कैल्शियम, विच आर जी मोस्ट इम्पोर्टेंट, है ना, as जी far as your thyroid is concerned. There also, again, to add on to it would be your antioxidants, which are your vitamin A, C, and E. These are the राइट। three vitamins A, C, and E, and your iron and your calcium. ये 4-5 चीजें हैं जिनको मैं specifically highlight करूंगी इन सभी age जी groups के अंदर. When I जी start with my teenage girls, we have to understand that we have to have this specifically two of the minerals prominently in their diet so that जी they don't have any kind of blood deficiency, especially, I जी। mean, anemia. 50% of our population, female population, is suffering from anemia. अनीमिया। इंडिया में, यस। है जी। ना। अब वो अलग बात है कि वो ग्रेड ऑफ अनीमिया अलग अलग है, कोई माइल्ड है, कोई हाँ जी। मॉडरेट है, कोई सीवियर है। पर जी हम अगर रैंडमली भी ब्लड टेस्ट कराएंगे ना तो किसी को हीमोग्लोबिन 11 भी मिलता है, इज सपोज टू बी एन एनीमिक पेशेंट। बट यही यस। है कि हम 11 पे भी वी आर वेरी प्राउड कि अरे नहीं नहीं 11 है, इससे तो ज्यादा क्या चाहिए आपको, 11 हीमोग्लोबिन पे हम सर्वाइव तो कर रहे हैं अच्छे से।
तो मैंने ये कहा कि 11 पे आप सर्वाइव करो, मैंने तो 5 पे भी लोगों को सर्वाइव करते हुए देखा है। देख, But integrally, what losses it is making, damaging, what damages it is doing in your body that you don't understand. And that you जी understand later on when you come to that stage where you are actually carrying a baby. Pregnancy वाली stage आती है, teens जी वाली stage में हम लोग बहुत ज्यादा इन चीजों को लेके इतना ज्यादा कंसिडरेट होते नहीं है। ना जी हम होते हैं और हम उस स्टेज में होते हैं कि हम मम्मी 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 की सुनना चाहते भी नहीं है, हाँ बिकॉज जी मदर्स आर दी वन हु आर कॉन्स्टेंटली सेइंग अरे तुम ये पालक खा लो, अरे तुम सरसों खा लो, अरे तुम मेथी खा लो। और वी आर दी एंड आवर किड्स आर दी वन हु मतलब पुश बैक किया, क्या मम्मी आपको सारे टाइम यही सब्जियां मिलती है क्या बनाने के लिए? आई मीन दैट्स हाँ दी जी constant fight between these two groups राइट as far as diet is concerned. And when you talk about your thyroid patients, there also we talk about high content, high good amount of iron in the diet along with अच्छा fibers. तो ये आपका ग्रीन डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स तो आता ही आता है उस कैटेगरी के अंदर, जिसमें ठीक आपका है पालक, मेथी, बथुआ, सरसों, मूली के पत्ते, गाजर के पत्ते, इवन योर बीट लीव्स, बीटरूट के लीव्स जो आ गए वो हो गए। ये सब बच्चों को खाने चाहिए। व्हेन दैट्स लाइक अच्छा एटलीस्ट वीक में 3 बार तो ये खाना ही चाहिए। आई डोंट से हैव इट डेली, but try to have at least thrice in a week, which will also help you in compensating this amount which we want. So ओके greens should be in the culture. Now, अच्छी बात क्या है अपने साथ में सौम्या की न्यू डाइट में, न्यूट्रिशन में द बेस्ट पार्ट इज कि आप एक चीज खाते हो ना तो हमें एक के साथ 2-3 चीजें मुफ्त मिलती है। आई मीन दैट्स अ फ्री थिंग विच वी गेट, एंड ओके एनीथिंग विच वी गेट इन फ्री एज अ हार्डकोर इंडियन आई वुड लव टू टेक इट, है ना? सो सब्जी वाले के राइट पास हम जाते हैं, जब धनिया मिलता है फ्री तो वी फील गुड कि चलो भले ही हमने बिल्कुल सब्जी 500-800 की लिए, लेकिन वो जब 50-100 रुपए का धनिया फ्री मिलेगा, वी फील लाइक अ क्वीन देयर कि हाँ हमने कुछ बढ़िया यस सब्जी खरीदा है। दैट्स जी हाउ द डाइट इज एक्चुअली। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट if I talk about greens, so you are getting iron, you are getting यस good amount of calcium, जी and also you are getting antioxidants out of it. ओके विटामिन ए और मैं स्पेसिफिकली विटामिन ए की बात कर रही हूँ, बीटा कैरोटीन की, तो ये आपको ग्रीन्स में बहुत अच्छे मिलेंगे। तो जब जी ये सारे ही चीज आपको एक चीज से कॉम्पनसेट करने को मिल रहा है, तो व्हाई नॉट वी हैव दैट इन आवर डाइट देन? आई मीन वी हैव टू राइट लुक अपॉन द बेनिफिट्स कि कितने सारे बेनिफिट्स आपको मिल रहे हैं, तो उसके सामने तो ये थोड़ा सा हरी सब्जी खाना इज नॉट अ वेरी बिग डील। राइट So that's how it is. Then also there's specifically 3 colors I would like to highlight, rather 4 colors I would like to highlight when we are talking about all these micronutrients. They're red, green, and yellow, the traffic lights, along with राइट whites. ओके There are the 4 colors. So the पहले मैंने जब whites की बात की थी कार्ब्स में, तब मैं उसको बैड की कैटेगरी में रखी थी, लेकिन जी अब मैं जो whites की बात कर रही हूँ तो ये मैं गुड की कैटेगरी में रख रही हूँ, क्योंकि हाँ जी यहाँ आ रहे हैं आपके मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स which are an integral part to take as far as your calciums are concerned. ओके एंड देन आपका मतलब दही, दूध, छेना, पनीर, आपका अंडा, ये सब व्हाइट्स में आ गए। तो ये जी कैल्शियम भी मिल रहा है इससे, और इन व्हाइट्स से आपको विटामिन ए भी मिल रहा है विच इज अगेन एन जी एंटीऑक्सीडेंट। तो वो जी आपका यहाँ पे आ जाता है। एंड ऑल द लाल, पीली एंड हरी सब्जियां। तो ट्रैफिक लाइट्स इज वन थिंग विच आई ऑलवेज टेल इन एनी ऑफ माई सेशंस कि लेना ही लेना है डाइट के अंदर। इफ जी नॉट ऑब्वियसली एवरीथिंग आप रोज तो नहीं खा सकते हो, but try and incorporate any one thing in one day's diet. एटलीस्ट इतना तो करो कि आपने हम्म आज हरी सब्जी खाया है तो आप नेक्स्ट डे कोशिश करो कि आप कुछ रेड लो। और उसी दिन में अगर तीनों कलर्स आ जाए तो नथिंग लाइक इट कि आपने हरी सब्जी भी खा लिया, रेड्स में आपके बीटरूट आ गया या एप्पल आ गया या आपका अनार आ गया, आपके बेल पेपर्स आ गए, मतलब जी कुछ भी ऐसा, आप टमेटोज आ गए, ये सब अपना रेड में, तो आप उधर यस उस दिन में रेड भी खा लिया। और आपका येलोज में आपके पपाया आ गया, मैंगो आ गया, बनाना आ गया, या आपके वन वेजिटेबल विच नॉर्मली पीपल डोंट लाइक टू हैव इज पम्पकिन, कद्दू, which हाँ is जी I think one of the best vegetables available to us. सस्ता भी जी मिलता है, हम्म लोकली अवेलेबल भी है, और एन नंबर ऑफ बेनिफिट्स हैं एक्चुअली पंपकिन के। यू गेट इमेंस अमाउंट ऑफ विटामिन ए आउट ऑफ इट, बीटा कैरोटीन बहुत अच्छा मिलता है, विटामिन सी बहुत अच्छा मिलता है, फाइबर्स बहुत अच्छे मिलते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत अच्छे मिलते हैं, एंड वाटर परसेंटेज बहुत अच्छा होता है इसके अंदर। तो वेट वॉचर्स, क्योंकि मैंने कहा थायराइड में वेट वॉच करना ही है हमारे को, तो सच जी वेजिटेबल्स आर रियली गुड टू कंज्यूम। तो दीज ओके आर इन योर येलोज। वो ये 3-4 कलर्स आप अगर दिन की डेली डाइट में इनकॉर्पोरेट करके रखोगे, so you'll get all good benefits. So you'll get good iron, then you get हम्म good calcium,
And when I talk about calcium, I also want to highlight the vitamin D wala thing, which is जी again one thing which we people are very deficient in these days. किसी का भी जी रैंडम विटामिन डी प्रोफाइल कराओ वो कम ही मिलेगा. आधे से जी ज्यादा जनता विटामिन डी डेफिशिएंट है बिकॉज वी आर नॉट एक्सपोज टू सन टू मच. हम लोग सारे टाइम एसी कमरों के अंदर रहते हैं, काम करते समय हो चाहे. जी द बेस्ट पार्ट इज कि people who are actually working in जैसे मैंने कहा ना हमारे आई गेट टू सी ऑल काइंड ऑफ पीपल पेशेंट्स. तो कई जने हैं जो धूप में खेतों में काम कर रहे हैं, बोलते साहब हम तो पूरे टाइम खेतों में रहते हैं धूप में, फिर हमारा विटामिन डी कम क्यों आ रहा है. कम क्यों आ तो अब ना एक्चुअली कम इसलिए आ रहा है कि बेस्ट टाइम टू टेक विटामिन डी इज अर्ली मॉर्निंग्स. अर्ली मॉर्निंग्स इट्स बिटवीन लाइक से 8:30-9 से पहले पहले वाला जो सन रहता है ना, that sun rays are the best to absorb vitamin D. That skin will absorb best at that time. अब खेतों में आप 12 बजे 1 बजे 2 बजे कड़ी धूप में भी काम कर रहे हो, लेकिन आपको डी नहीं मिल रहा है उस समय. आपको यूवी रेज बराबर मिल रहा है लेकिन डी नहीं मिल रहा है. एंड सेम गोज विद द अर्बन पॉपुलेशन ऑल्सो. हम लोग जब तक निकलते हैं घर से बाहर तैयार होकर ऑफिस के लिए, इट्स ऑलरेडी 9-9:30 बाय द टाइम. राइट एंड इन केस इवन वी आर ऑन टू व्हीलर, तो हम अपने आप को ऐसे ही पूरा ढक के रखते हैं. हम गाड़ी हाँ में जी होते हैं तो फिर हम डायरेक्टली एक्सपोज नहीं होते, हम फिर सीधे ऑफिस में चल जाते हैं, वेयर अगेन वी आर नॉट एक्सपोज. तो द बेस्ट थिंग इज जो अंग्रेजों में एक चीज बड़ी अच्छी है, सनबेथिंग का कल्चर है उनके अंदर, है ना. वो लोग तो दे डू इट बिकॉज दे वांट डार्क स्किन एंड दे लव यस लुकिंग द टैन. टैन लुक Yeah, the tan color, sun-kissed. So they love looking good in that color. But in our families, that culture should be there. I mean, in that is one thing which is missing. So at least हफ्ते में 2-3 दिन आप निकालो जिधर आप मॉर्निंग में अच्छे से आधे घंटे धूप के अंदर बैठो. मॉर्निंग का धूप इज नॉट बैड बिकॉज देयर यू आर नॉट गेटिंग यूवी रेज, सो डोंट थिंक दैट यू विल गेट टैन दैट टाइम. आपका टैनिंग का टेंशन नहीं रहेगा, बट यू विल गेट गुड अमाउंट ऑफ विटामिन डी. तो कम से कम 3 से 4 दिन वीक में ऐसे निकालो वेर यू हैव योर सुबह का चाय सिटिंग इन नाइस सन. सुबह वाला धूप इज लाइक ठंडी मीठी धूप, तो उसमें ओके अपना चाय कॉफी जो भी आप सिप कर रहे हो सुबह का वो करो. एंड सिट देयर फॉर हाफ एन आवर विद मिनिमल क्लोथिंग जिधर आपका मैक्सिमम स्किन इज एक्सपोज टू सन. ओके सो दैट्स हाउ इट इज. या ओके ओके एंड व्हाट अबाउट जैसे हम बोल चुके हैं कि अलग अलग वॉक्स ऑफ लाइफ इन फीमेल्स पे राइट हमने राइट अच्छे राइट. से या डिस्कशन किया. सो अब सो लड़ हाँ जी, तो अब लड़के और लड़की में भी कोई डिफरेंस होगा आई एम श्योर. सो इज डाइट मैनेजमेंट अब फॉर मैं हाइपोथायराइडिज्म. लड़कियों में हॉर्मोन्स का डिफरेंस आ जाता है ना. ओके हमारे फीमेल्स प्रीडोमिनेंटली वी प्रोड्यूस एस्ट्रोजन हॉर्मोन्स. एंड जी एस्ट्रोजन हॉर्मोन्स ही है, मतलब ये और मेल्स में एस्ट्रोजन नहीं होता. तो ठीक है यहाँ स्पेसिफिकली हॉर्मोन्स का डिफरेंस आ जाता है. बट ठीक है जहां तक आपके डाइट कंसर्न्स हैं, तो हम्म आपको ये अंडरस्टैंड करना है ईस्ट्रोजन हमारा जो वर्क करना कम करता है वो करता है पोस्ट मेनोपॉज. मेनोपॉज. तब जाके कम करता है. मेनोपॉज हो गया तो आपका चलो वो हार्मोन जो है वर्क नहीं कर रहा है, तो तब हम ऑलमोस्ट मैं ये नहीं कह रही कि हम लड़के बन गए, पर द प्रोफाइल इज लाइक दिस कि ईस्ट्रोजन इज नॉट दैट मच एज लाइक इट वाज अवेलेबल देयर बिफोर दैट. तो वो पोस्ट मेनोपॉज डाइट जो होती है उसके अंदर, बट द ओनली थिंग इज कि वहां पे हमारे को बहुत ज्यादा हम लोग कहते हैं कि आइसोफ्लेवोन्स ऐड करो और ये करो, पर यहाँ थायराइड पेशेंट्स में हम उनको नहीं कहेंगे बिकॉज वहां ठीक पे है अगेन वही वाली बात आती है कि आप आइसोफ्लेवोन्स हमें नेचुरली सोया से मिल रहे हैं, हम सोया अवॉइड करने के लिए कहते हैं कि आप नहीं खाओगे. बट ठीक है हाँ, ये जरूर ध्यान रखना है कि सडनली देयर इज अ लॉट ऑफ हार्मोनल डिस्टर्बेंस, बिकॉज ऑफ दैट देयर इज अ लॉट ऑफ वेट गेन which might happen to any female. And in that case you have to be very sure that we are constantly maintaining on the weight cycle which we were doing before also. तो वो जी वेट साइकिल को पूरा मेंटेन करके चलना है. प्रेगनेंसी लैक्टेशन के वक्त में भी चलता रहेगा वो, फिर मतलब चाइल्ड बेयरिंग एज में भी चलता रहेगा वो, और वो पोस्ट मेनोपॉजल भी हो गया और वो टीन्स में भी. दैट वेट साइकिल हैज टू बी ऑलवेज मेंटेन. ओके एंड फॉर बॉयज ऑल्सो this is again the same factor which we will consider is that the weight cycle has to be maintained. कि ओके हमारे को हमारे जो फिजिकल एक्टिविटी का पैटर्न है वो जी उतना रखना है कि आपका इनपुट और आउटपुट जो है वो आइदर इट इज इन बैलेंस, एंड इन केस यू आर ऑन अ हायर साइड ऑफ वेट द आउटपुट शुड बी लिटिल मोर देन द इनटेक यू हैव. ओके That balance you have to always keep a check on.
है ना, Okay. कि आपको पता है आई एम ऑन अ हायर साइड ऑफ वेट, सो यू हैव टू कंट्रोल, देन योर आउटपुट शुड बी मोर देन द इनपुट। आई डोंट व्हाट हम लोगों के यहाँ पे इजियर मैनेजमेंट क्या होता है, हमारे यहाँ इजियर मैनेजमेंट होता है कि हमारा इंटेक हम कम कर लेते हैं, हम्म। एक्सपेंडिचर पे हम बिल्कुल भी जोर नहीं देते। जी। दैट्स द इजीएस्ट वे कि हाँ खाना खाना बंद। आई हैव सीन पीपल हु हैव ऑलमोस्ट स्टॉप्ड ईटिंग फूड। वो राइट। वो ऐसा ऐसा अपने आप को स्टार्व करते हैं पूरे दिन में। भाई तुम्हारे को केवल थायराइड हुआ है, हम्म। आपको कोई पनिशमेंट नहीं मिला है कि आप थायराइड हो गया तो आप अपने आप को स्टार्व करोगे, क्योंकि आप स्टार्व करने के चक्कर में यू आर लूजिंग ऑन इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स विच यू यस। हैव, विच यू आर सपोज टू हैव, क्योंकि हम इतनी देर से बात की उनके बारे में। तो वो नहीं करके आपको अपना एक्सपेंडिचर बढ़ाना। सो यू शुड जी। जस्ट नो दैट व्हाट इज योर जनरली, व्हाट इज योर आउटपुट, आपका जो रूटीन एक्सपेंडिचर है वो कितना है, और जी। उसमें आपको एड ऑन करना है। वट एवर जी। इज द रूटीन एक्सपेंडिचर उसमें एड ऑन करो। सेम गोज विद द meal profile also. Okay. Right. And I think diet is one topic just when we can just go on and on and on. And I think it's enormous and there's so much information and there's so much to learn. So, just to summarize this wonderful session you've just had, ma'am, what is your recommended dietary to-do list for someone who's diagnosed with hypothyroidism? Let's say a top 10 list you would recommend your patients कि उनको अपनी daily life में किस तरह से वो balance बना के रखना है, be it a guy or a girl. It's just not dietary list, it is my हाँ जी। lifestyle change, है ना? Done. So हाँ my जी। number one is to have a well balanced diet, which should Okay. be moderate in calories, good in proteins, and very good in your micronutrients. That's how it Right. is. So Okay. that is number one. Number two, you should have good amount of sleep. Now, good Right. amount of sleep, matlab, you should sleep for 6 to 7 hours between 10 p.m. to 6 a.m. Now, that is Okay. very important thing. You have to maintain your sleep cycle, because you're not maintaining your sleep cycle, again, you're disturbing your hormones. So that's how it is. Number three, you should have good amount of physical activity in your diet, in your routine. तो Okay. कोई भी तरह का फिजिकल एक्सरसाइज आपका हो, चाहे वो आप साइकिलिंग कर रहे हो, चाहे आप रेगुलर वॉकिंग के लिए जा रहे हो, चाहे आप जिमिंग कर रहे हो, whichever way you are doing it, you should have at least 5 days where particularly you have to have 1 hour of exercising daily. And in case if you're not taking out that 1 hour, तो आप आधा घंटा फिर आपको रोज का निकालना होगा, पर आपको निकालना है। इफ यू आर ट्राइंग टू one kind of physical activity, it can be anything. I mean, it can be जी। aerobic, it can be any exercises. जी। Number four, keep a check on your stress levels. That's very Okay. important. बिकॉज जी। वहां सारा गड़बड़ हो जाता है, उधर गड़बड़ होता नहीं है। अच्छा, ये नहीं है कि स्ट्रेस मतलब ये कि मैं अपना सर पकड़ के बैठी हूँ कि यार ये क्या हो गया आज लाइफ के अंदर। दैट इज जी। नॉट स्ट्रेस। Stress can be about anything. It can be a work stress. It can be a regular home stress. I mean, you need to understand to keep a balance between work, your life. I mean, your work-life balance को एक लेकर चलना पड़ेगा, जिससे आपका जी। स्ट्रेस साइकिल अच्छे से मेंटेन रहे। वहां गड़बड़ हो जाती है ना, तो all the way we go wrong on all the parameters. So these हाँ are जी। the key points which we have to keep a check on as long as any patient, any thyroid patient is concerned, may it be male or female. ठीक है. Great. So I'm really appreciating your presence with us today, ma'am, and I'm hoping that the enlightening information shared will be valuable to so many families. So thank you so much for joining us. It's really been a pleasure. Thank you so Thank much. you. Thank you so much. Thank you. Thank you, ma'am. And for more such informative videos, please do subscribe to our channel and press the bell icon for regular updates. Thank you.